Hello everyone, welcome to Precision Prep. In today's video, we are going to cover the most very important questions from the change in profit sharing ratio. These 11 or 12 questions are more than sufficient for you to cover in the exams. So let's get started. After reading the question, first of all, you all read the question and then we will start the questions. Okay. The Dan, Elf, and Farhan were the partners sharing profits and losses in the ratio 5:3:2. With effect from the 1st April, they have changed their profit sharing to 5:2:3:5. So पहले ratio कितना था आपका 5:3:2. Now the ratio is 2:3:5. There exists a general reserve of 90,000 on the date of change in profit sharing ratio. तो उस दिन जनरल रिजर्व कितना एग्जिस्ट कर रहा था 90,000 का एक जनरल रिजर्व जो है वो एग्जिस्ट कर रहा था ऑन द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. द पार्टनर्स डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व. देखिए अभी क्या उन्होंने डिसाइड किया कि वो जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे. दैट सिंपली मीन्स दैट कि हमें पासिंग का एंट्री नहीं करना है, एडजस्टिंग का एंट्री करना है. एंड ही सेज पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री ऑफ द एडजस्टमेंट एंट्री. अब जनरल रिजर्व क्या होता है? जनरल रिजर्व इज व्हाट? इज एन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स. और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का एंट्री क्या होगा? अगर एडजस्टिंग करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना तो पार्टनर्स क्रेडिट हो जाएंगे. अब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, एडजस्टिंग एंट्री करना है तो क्या एंट्री होनी चाहिए? द गेनिंग पार्टनर्स टू sacrificing partners. That means what we have to find out? We have to find out the gains and the sacrifice of the partners. Partners कौन कौन है? We have three partners, the Dan, Elf and Farhan. What is the formula for calculating gaining or sacrifice? Simple. The old minus new ratio is gives you हो गया sacrifice calculate करने का. old ratio minus new ratio. So if in future we have to calculate the gain, तो formula क्या होना चाहिए? new minus old. So old ratio कितना है आपका? 5/10, 3/10 and 2/10. And what is the new ratio? 2/10, 3/10 and 5/10. So calculate कर दें. This is coming out to be 3/10, 0 and this is minus 3/10. नेगेटिव आ रहा है. सो अभी नेगेटिव जो आ रहा है फरहान, हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं? सैक्रिफाइसिंग, बट इट इज कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव 1. सो जो पॉजिटिव आया सैक्रिफाइस कैलकुलेट करते टाइम, दिस इज योर गेन. और ये तो क्या है? आपका सैक्रिफाइस पार्टनर है ही, क्योंकि सैक्रिफाइस कैलकुलेट किया. सो आंसर क्या होना चाहिए? फरहान. क्योंकि फरहान क्या है? हमारा गेनिंग पार्टनर. हमें एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है तो क्या एंट्री होनी चाहिए? फरहान. We don't have a fixed capital here. So Farhan's capital account debit, क्योंकि फिक्स नहीं है, फिक्स होता तो करंट लिखते. Farhan's capital account debit to Del's कैपिटल अकाउंट. कितना प्राइस है ना? जनरल रिजर्व है आपका 90,000 मल्टीप्लाई बाय कितना है? 3/10 इज द गेनिंग रेशियो. सो आंसर इज कमिंग आउट टू बी 27,000 फॉर बोथ डेबिट एंड क्रेडिट. Right? I hope the answer is clear. Because उसने क्या कहा है? He didn't ask us to distribute. He simply asked us to give the adjusting entry. Okay. Now let's jump to the next question. Question number 2. Sia, Tom and Vidhi were the partners sharing profits and losses in 3:1. With effect from 1st April 2023, they have decided to share future profits in the ratio 1:3. Change in profit sharing ratio हो गया. उस दिन क्या था? There was a debit balance in profit and loss account. Now this is important. सिर्फ profit and loss account पढ़ के नहीं छोड़ना. There is a debit balance of 60,000 in profit and loss account. Debit balance है, that means क्या है वो आपका इस समय लॉस है. Pass the necessary journal entry for the distribution of balance in profit and loss account. तो सिंपली किसका एंट्री करना है? डिस्ट्रीब्यूशन बैलेंस का एंट्री करना है आपको, एडजस्टिंग एंट्री नहीं करना. लॉस हो रहा है, अगर लॉस होता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होना चाहिए? आपका डेबिट. बिकॉज लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो जाएगा. तीनों पार्टनर में सियास कैपिटल अकाउंट डेबिट. हु इज द नेक्स्ट पार्टनर? टॉम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट. And who's the next partner? With his capital account debit to
हु इज द नेक्स्ट? पार्टनर्स हो गया. नाउ वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट व्हाट? प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अमाउंट कितना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का? 60,000 टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओल्ड रेशियो. जब हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, वहां पे न्यू रेशियो का कोई यूज नहीं होगा. और नरेशन क्या होगा? सिंपली बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो. और अगर एडजस्टिंग एंट्री करना हो तो क्या कैलकुलेट करते हैं? पहले ओल्ड माइनस न्यू सैक्रिफाइस और गेन कैलकुलेट करते हैं, और आंसर क्या होता? सैक्रिफाइस टू गेनिंग पार्टनर्स. बिकॉज यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? आपका लॉस दिया गया है, ना कि प्रॉफिट. तो सैक्रिफाइस टू गेनिंग. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन नंबर 3. भीम, Arjun and Nakul were the partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 4:3:3. Initially ratio कितना है? 4:3:3:3. With effect from 1st April, they agreed to share future profits equally. Calculate their sacrificing ratio and the gaining ratio. Now, भीम, अर्जुन एंड नुकुल 3 पार्टनर्स हैं. ओल्ड रेशियो 4:3:3 है. इक्वल कर दिया तो सिंपली आपको क्या कैलकुलेट करना है? गेनिंग और सैक्रिफाइस कैलकुलेट करना है. सिंपल क्वेश्चन. देयर इज नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस. भीम and the second partner is Arjun and the Nakul. What is the formula for calculating the ratio? Sacrifice और gain calculate करना है. Simple. Old minus new equals to your sacrifice. ठीक है. ओल्ड पार्टनर कितना है? 4:3, 4:3, 7 और 10. 4/10, 3/10 एंड अगेन 3/10. व्हाट इज द न्यू रेशियो? न्यू रेशियो है आपका इक्वल. सो 1/3, 1/3, 1/3. सिंपल. आप अपना मैथ्स यूज करके इसे कैलकुलेट करोगे. 2/10 सैक्रिफाइस हो गया किसका? भीम का. इसमें क्या हुआ आपका? देयर इज अ -1/30 गेन हुआ फॉर द अर्जुन. नकुल का भी कैलकुलेशन सेम है, सेम अमाउंट है, तो 1/30 गेन हो गया. अब देखिए दोनों पार्टनर्स का गेन कितना है? 1/30, 1/30, 2/30. दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू द सैक्रिफाइस ऑफ बी. तो ये हर क्वेश्चन में ऐसा होगा कि अगर 3 पार्टनर है या 4 पार्टनर है, एनी ऑफ द पार्टनर्स गेन मस्ट बी इक्वल टू द अदर पार्टनर्स सैक्रिफाइस. तो 2/10 सैक्रिफाइस, 1/30, 1/30 गेन. दैट मीन्स 2/30 आपका गेन हो गया. ओके, लेट्स move to next question. Question number 4. Question number 4. Anu, Manu, Sonu and Rohan, 4 partners and they are sharing profit and losses in 1:2:1:2. With effect from 1st April, they decided to share future profits and losses in 2:4:1 and 3. Their balance sheet showed general reserve of 90,000. तो balance sheet में कितने का reserve है? 90,000 का. Goodwill of the firm was valued at 4,50,000. Pass the necessary journal entries for the above in changing in profit sharing ratio and shows your working clearly. Workings में क्या बनेगा? आपका working note बनेगा. बाकी entries किस किस की होंगी? आपकी general reserve की और goodwill of the firm की. अब देखिए क्वेश्चन में उसने adjusting entry करने को नहीं बोला. So adjusting नहीं बोला तो हम दोनों का different entry करेंगे. पहले आते हैं आपका general reserve पे. General reserve distribute होगा in the ratio old partners, क्योंकि distribute आपका एडजस्टिंग एंट्री तो करना नहीं, तो पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएंगे? क्रेडिट टू किसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? टू अनुस कैपिटल. कैपिटल होगा क्योंकि कहीं पे भी हमें फिक्स्ड नहीं बोला है कि उनका फिक्स्ड कैपिटल है. अनुस कैपिटल अकाउंट टू मनुस कैपिटल अकाउंट. द नेक्स्ट इज व्हाट? सोनूस कैपिटल अकाउंट. And the next partner is Rohan's capital account. Now, general reserve कितना दिया है? 90,000, राइट? अब 90,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1:2:1:2. तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो. आपका कितना कैलकुलेशन होना चाहिए? 90,000 डिवाइडेड बाय 2, 4, 5, 6. That is coming out to be 15,000. Now, first partner is 1, तो 15,000
Manu had 2, so 15,000 into 2, again 1, 15,000 and 30,000. So this is the distribution of general reserve, being the general reserve distributed among the partners. अब next journal entry किसका होना चाहिए? Goodwill of the firm valued at 4,50,000. अब गुडविल का जर्नल एंट्री क्या होता है? गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. तो इसके लिए क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा वर्किंग नोट्स लिख करके आपके रेशियोज. 3 पार्टनर्स है, अनु, मनु, सोनू एंड रोहन. तीनों पार्टनर्स का वही फॉर्मूला, ओल्ड माइनस न्यू, सैक्रिफाइस कैलकुलेट करने के लिए. सो ओल्ड पार्टनर का फॉर्मूला क्या है हमारा? 1/6, 2/6, 1/6 एंड 2/6. New is what? 2, 4, 6, 7 by 10. 2 by 10, 4 by 10, 1 by 10 and 3 by 10. Calculate करते हैं for all the partners. करते हैं, एलसीएम लेंगे 30 -1/30 हो गया आपका अनु का गेन, बिकॉज नेगेटिव आया है. मनु कैलकुलेट करेंगे -2/10. Okay, now for the Sonu, 2/10. Sacrifice आया. For the third partner Rohan, 1/10, that is the sacrifice. तो फर्स्ट 2 पार्टनर्स आपका सैक्रिफाइस दे रहे हैं, अनु और मनु, और बाकी पार्टनर्स क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट एंट्री करते हैं. हमारा एंट्री रिलेटेड टू द गुडविल. गुडविल का एंट्री क्या होना चाहिए? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. तो हमारे गेनिंग पार्टनर कौन आ रहे हैं? फर्स्ट 2 पार्टनर्स, दैट इज अनुज कैपिटल अकाउंट डेबिट, मनुज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और नेक्स्ट 2 पार्टनर सैक्रिफाइसिंग है. तो 2 सोनूज कैपिटल अकाउंट, 2 रोहन्स कैपिटल अकाउंट. फर्स्ट पार्टनर का कितना आया हमारा? 1/10. गुडविल का वैल्यू कितना है? 4,50,000. 4,50,000 इंटू 1/10, 45,000. नेक्स्ट पार्टनर मनु गेन कर रहा है 2/10, तो 90,000 इंटू 2/10. सोनू का गेन है 2/10, दैट मीन्स 90,000. एंड रोहन का गेन है 1/10, दैट इज 45,000. नरेशन क्या होना चाहिए? बीइंग द एडजस्टिंग एंट्री पास्ट. राइट, ध्यान से देख लीजिए, इसी के बेसिस पे बाकी क्वेश्चंस भी होंगे. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. Monu, Sohan, and Rahul were the partners sharing profits and losses in the ratio 4:3:2. With effect from 1st April 2023, they decided to share future profits and losses in the ratio 3:1. तो ये आपका change in profit sharing ratio हो गया. On that date, वो कह रहा है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कितना है? 84,000. 84,000 का वर्कमैन कॉम्पनसेशन है. और उस दिन वर्कमैन कॉम्पनसेशन में जो लाइबिलिटी आई वो 75,000 आई, और इसी के लिए हमें क्या देना है? गिव द जर्नल एंट्रीज, गिव द इफेक्ट टू अबव ट्रांजैक्शन. अब वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व ऑलरेडी 84,000 का था, तो ओल्ड वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व क्या होगा? ऑलवेज ओल्ड वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व आपका डेबिट हो जाएगा, बिकॉज पुराना लाइबिलिटी एंड करेंगे और न्यू क्रिएट करेंगे. So this is coming out to be 84,000, the old workman compensation reserve, to न्यू वर्कमैन कॉम्पनसेशन लाइबिलिटी जितना आया, तो वो वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, जो न्यू लाइबिलिटी आया उसे लिखेंगे क्लेम अकाउंट. कितना क्लेम आ रहा है? 75,000 का क्लेम आ रहा है. 2, और जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग कितना रह गया? 9,000 रुपीज. और 9,000 को क्या करेंगे? सिंपली जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू मनुज कैपिटल अकाउंट, टू सोनूज कैपिटल अकाउंट, टू राहुल्स कैपिटल अकाउंट. कितना क्लेम है? 9,000. 9,000 इंटू 4/9, कितना हुआ आपका? 4,000, 3,000 and 2,000. Right? Okay, let's move to the next question. Question number 6. The question number 6.
Nikhil, Arun, and Mansi were the partners sharing profits and losses in the ratio 4:3:3. With effect from 1st April, they decided to share their future and profits in the ratio 5:3:2. Due to change in profit sharing ratio, calculate the gains and sacrifice. तो simple question आपको क्या calculate करना है? उनका gain और sacrifice. So what is the formula? The sacrifice equals to your old minus new. और अगर negative आया तो क्या हो जाएगा आपका gain. So what is the new ratio, old ratio? We have a 3 partners, Nikhil, Arun, and Mansi. Old ratio निकालेंगे. Old ratio is 4:3:3. 4:3:3, that means old partner is 4/10, and there is 3/10 and 3/10. What is the new ratio? 5:3:8, 5:3:8 or 2:10, 3/10, so 2/10. So Mansi is getting 1/10 positively, that is sacrifice. Arun is 0 and Nikhil is minus 1/10. That means he has the gain of 1/10. So this is what he asked us to calculate. Simple. Okay, let's go to next question. Question number 7. Now, one of the most important question जिसके बेसिस पे आपका पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा और अगर एग्जाम में आया तो आपको 6 मार्क में आएगा सीधे सीधे ये क्वेश्चन. सो वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, लेट्स डू द क्वेश्चन. Frank, George, and Hemant were the partners sharing profits and losses in 5:3:2. They decided to change their future profit ratio to 2:5:3. पुराना ratio 5:3:2 है, new profit sharing ratio हो गया आपका 2:5:3. With effect from the 1st April. What is the balance sheet is given to you? तीनों पार्टनर्स के कैपिटल है तो यहां से क्लियर हो जाएगा. फिक्स नहीं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है. एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, क्रेडिटर्स तो थर्ड पार्टी लायबिलिटी होता है. एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड भी क्या होता है? थर्ड पार्टी लायबिलिटी. पीछे फंड लगा है लेकिन ये किसी भी तरह का रिजर्व्स और सरप्लस का आइटम नहीं है, बिकॉज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इज रिलेटेड विद द एम्प्लॉयज, नॉट विद द पार्टनर्स. नाउ what else is given to us? We have given the general reserve. General reserve भी क्या होगा? It's kind of a reserve जो partners में क्या होगा हमें distribute करना है. इसको mark करके रखते हैं, distribute करेंगे. Asset side, land, building, machinery, stock, debtors, cash. तो किसी भी तरह का loss नहीं है. Now he says the land value of the land and building appreciated and brought up to 6,50,000. पुराना land 5 लाख का है, new land 6,50,000 का हो गया तो 1,50,000 increase in asset. Revaluation account में जाएगा. What he asks us to calculate? वो कह रहा है necessary journal entries pass करो बस. That means हमें account नहीं बनाना, simple journal entries करना है. गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू कर रहा है 2 लाख का. गुडविल वॉज नॉट टू अपीयर इन द बुक्स. गुडविल कभी भी अपीयर नहीं होता, हमारा वही एंट्री रहेगा. गेनिंग टू सैक्रिफाइस. तो अगर गेनिंग टू सैक्रिफाइस करना है सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? यू हैव टू कैलकुलेट द working note. You have to calculate the gaining and the sacrificing ratio. We'll start with calculating the रेशियोज फर्स्ट. वर्किंग नोट बनाएंगे. वर्किंग नोट में तीनों पार्टनर्स फ्रैंक, जॉर्ज और हेमंत की रेशियोज कैलकुलेट करेंगे. ओल्ड रेशियो कितना है आपका? 5/10, 3/10 एंड 2/10 आर द रेशियोज. माइनस कर दो. आपका न्यू रेशियो विच इज 2/10, 3/10 एंड 5/10 and 3/10. So what are the answer? 5/10 minus 2/10, 3/10 is the gain, then minus 2/10 and the minus 1/10. So first partner Frank आपका sacrifice कर रहा है, the other partners are gaining 2/10 and 2/10. Okay, we'll start doing the journal entries. First journal entry हम adjustment से start करेंगे so that किसी भी तरह का mistake नहीं होना चाहिए. 6 मार्क के क्वेश्चन आप जब भी करते हो there has to be followed by a process so that कि आप कहीं पे भी कोई स्टेप मिस नहीं कर जाओ. हमें एडजस्टमेंट दिया है तो हम सबसे पहले एडजस्टमेंट वाले जर्नल एंट्रीज करेंगे. देन एट द सेकेंड स्टेप वी विल लुक एट द बैलेंस शीट एंड डू द जर्नल एंट्रीज. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट journal entry step.
So we already have the ratios calculated with directly doing the journal entries. First journal entry क्या हुआ था? लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख का लैंड था बैलेंस शीट में और 6,50,000 पे अपेयर हो रहा था. So 50,000 पे 6,50,000 पे अपेयर हो रहा. There is increase in the land. So लैंड बढ़ रहा है यानी एसेट इंक्रीज हो रहा है. कोई भी एसेट इंक्रीज होगा तो दैट मीन्स हमारा रूल क्या कहता है? एसेट हैज टू बी डेबिट बाय the amount which has been increased. Amount कितना increase हुआ? 1,50,000. 1,50,000 increase in land to you have given a revaluation account. कितना revaluation account? 1,50,000. We have already seen कि और कोई ऐसा adjustment नहीं है जो revaluation account में जाएगा. So इस वजह से revaluation account में ये क्या होगा? आपका प्रॉफिट किस में, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? अबाउट योर पार्टनर्स. सो हु आर द पार्टनर्स? फ्रैंक, जॉर्ज एंड हेमंत. 5, 3, 2. क्योंकि रिवैल्यूएशन है तो एंट्री किस में जाएगा आपका? अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. टू सिंपल द जर्नल एंट्री विल बी फ्रैंक्स, क्योंकि हमने पार्ट बैलेंस शीट ऑलरेडी चेक कर लिया. फ्रैंक्स कैपिटल अकाउंट. टू we have Hemant's capital account and to George's capital account. Old ratio was 5:3 to 1,50,000 को distribute करोगे आप in the 5:3:2. राइट, ये हो गया आपका बीइंग द रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स. अब किसका एंट्री करना है? गुडविल का. गुडविल का जर्नल एंट्री क्या रहता है हमारा? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग. वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड कि आपके जो 2 पार्टनर्स हैं लास्ट सेकंड वाले हेमंत और जो, ये गेन कर रहे हैं तो दोनों को क्या करेंगे? आप डेबिट करेंगे. हेमंत कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्या डेबिट होगा? जॉर्ज, द जॉर्ज कैपिटल account debit to who is sacrificing? The first partner, who is the Frank, the Frank's capital account. What is the value of the goodwill given to us? Let's check. The value of the goodwill is given to us 2 लाख, और उसके बाद क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करने हैं हमारे जनरल रिजर्व जो कि डिस्ट्रीब्यूट होंगे, क्योंकि दोनों ही 2 लाख के हैं. 2 लाख का गुडविल है. 3/10 is the sacrifice. The 2 lakh into 3/10 is 60,000. For George, it is 1/10, 20,000. And for the next partner, the sacrifice is 2/10. The 2 lakh into 2/10 is 40,000, right? Yoga being the adjusting entry for goodwill is passed. Now, balance sheet scan किया. Balance sheet में हमें किसका entry करना था? We have to do the entry for general reserve. The general reserve account debit, it has to be distributed, क्योंकि उसने कुछ नहीं बोला कि distribute करना है या नहीं करना. तो सिंपली हम क्या करेंगे? तीनों पार्टनर्स में उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. ठीक है. टू हेमंत कैपिटल, टू जॉर्ज कैपिटल. अमाउंट एक बार कैलकुलेट करते हैं. 2 लाख इंटू the old partner, कितना अमाउंट है? 5/10, because general reserve is to be distributed in the old ratio. 2 lakh into 5/10, which is coming out to be 10,000. 1 lakh. 2 lakh into 3/10, which is coming out to be 60,000, and for the George into 2/10, which is 40,000. So these are the 4 journal entries which are required from us. Okay, let's check. ओके, बैलेंस शीट में कैपिटल्स क्रेडिट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड था, वी ऑलरेडी डन. लैंड का एडजस्टमेंट कर दिया. एसेट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लॉसेस कुछ नहीं था.
We have already done the land and building journal entry, goodwill. So these are the maximum entries he had required from us in this question. So I hope this question is clear. 6 mark का question है, 4 entries हुआ है, that means 1.5 marks for the each entry. तो अगर 4 mark में भी आता है, it's easy to go. Let's do the next one. The question number 8. Riha, Meenu, and Sara were the partners sharing profits and losses in the ratio 2 to 1. With effect from 1st April 2023, they agreed to share future profits and losses equally. तो old ratio था 2 to 1 का, ratio change होके कितना हो गया, equal हो गया. And there was a general reserve of 50,000 in the books appear. तो रेशो बता दिया और जनरल रिजर्व बता दिया और बोल दिया गुडविल अपीयर हो रहा है 3 लाख का, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ असेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज एंड एसेट इज 30. व्हाट वी हैव टू डू, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ द फर्म. ठीक है, वी हैव टू डू द जर्नल एंट्रीज, बट उसने कहीं पे भी हमें ये नहीं बोला कि एडजस्टिंग करना है. तुम जब तक नहीं बोल रहा एडजस्टिंग करना है, वी विल डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स अमंग द पार्टनर्स. तो सबसे पहले कौन से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए आपके, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना जनरल रिजर्व है 50,000. अब एक चीज और इस क्वेश्चन में हम कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू इज रेशियो. देखिए गुडविल के लिए तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करना ही है, तो उसके लिए तो क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू डू द गेनिंग टू सैक्रिफाइस कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी एंट्री आएगा. बट अदर व्हाट वी कैन डू इज कि गुडविल को छोड़ करके जो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है, बिकॉज प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन में भी क्या होगा, पार्टनर्स क्रेडिट होंगे और जनरल रिजर्व में भी क्या हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं. सो वी कैन मेक अ कंपाउंड एंट्री फॉर दिस जनरल रिजर्व अकाउंट. आप अलग करना चाहे तो अलग भी कर सकते हैं, वी कैन डू द वन एंट्री ऑल्सो, बिकॉज पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना तो क्रेडिट ही होना है. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट्स कितने हैं 30,000. टू, तीनों पार्टनर्स का नाम, टू रिहास कैपिटल अकाउंट, टू मीनूस कैपिटल अकाउंट, टू Sara's capital account. So these are the 3 entries we have to make. 80,000 into 2 by 5. So this is Sara's is 1 by 5. So 16,000. So 16 into 2, 32,000. And we have 32,000. So these are the journal entry for the general reserve and profit on revaluation. Now we left with the one entry goodwill of the firm 3 lakh. इसके लिए सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, तीनों पार्टनर्स का gaining or sacrificing. Same formula, old minus new ratio. What is the old? 2 by 5, 2 by 5 and minus 1 by 5. Minus करेंगे equal 1 by 3, 1 by 3, 1 by 3. For the first partner, 15, 15. So first partner is 1 by 10. Second भी 1 by 10 हो गया because same है. एंड द लास्ट पार्टनर इज गेनिंग. तो सारा जो क्या कर रही है, गेन कर रही है -2 by 10, और अदर पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, आपका सैक्रिफाइस कर रहे हैं 1 by 10 एंड 1 by 10. ठीक है, तो इसके लिए एंट्री करते हैं गुडविल का. क्या एंट्री होगा, गेनिंग पार्टनर हैज टू बी डेबिट. सो डेबिट कौन होगी, सारा, बिकॉज ही इज द इंडिविजुअल हु इज गेनिंग. तो सारा's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अदर पार्टनर्स, टू रिहा's कैपिटल अकाउंट, to Meenu's capital account. Okay, so what is the amount of the goodwill, 3 lakh. 3 lakh को distribute करेंगे in their sacrificing. कितना gain किया सारा ने, 2 by 10. So 3 lakh into 2 by 10 coming out to be 60,000, and other partner has 1 by 10, 1 by 10. That means 30,000 and 30,000. Okay, let's move on to the next question. Question number 9. Okay, ji. Question number 9. Isha and Manish were the partners sharing profits and losses in the ratio 3:2. With effect from 1st April, they agreed to share future profits equally. तो पहले 3:2 में डिवाइड कर रहे थे, अब कैसे डिवाइड कर रहे हैं, 1:1 के अंदर. गुडविल ऑफ द फर्म बताया है कितना वैल्यूएट कर रहा है, 3 लाख. नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट. देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि जब भी गुडविल में बोल रहा है कि विदाउट ओपनिंग. न्यू गुडविल, जैसे हमने गुडविल के चैप्टर में
किया था वैल्यूएशन वाले में, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ये सारे चैप्टर जितने भी आपके रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के हैं, इन सब में क्या है, आपका गुडविल सेल्फ जनरेटेड है, परचेज तो हो नहीं रहा बिजनेस, तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल हम लोग शो नहीं करते। तो पूरे पार्टनरशिप में गुडविल अकाउंट कहीं ओपन करना ही नहीं है, वो बोले चाहे नहीं बोले। तो सिंपल हमें गुडविल का एंट्री करना है। क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, गेनिंग और सैक्रिफाइस। ईशा का गेन कितना होगा, आपका गेन और सैक्रिफाइस ओल्ड रेशियो 3/10 और इक्वल हो गया 1/10। एंड फॉर द मनीष इट इज 2/5 माइनस 1/10। So 1/10 ईशा सैक्रिफाइस कर रही है, अदर मस्ट बी गेनिंग द सेम। यस, सो -1/10 मनीष का सैक्रिफाइस हुआ -1/10। सो एंट्री क्या होना चाहिए, गेनिंग पार्टनर इज मनीष, तो मनीष टू ईशा और मनीष टू ईशा। अमाउंट चेक कर लेते हैं बस, दोनों में कितना है, 3 लाख अमाउंट है, 3 लाख इंटू 1/10 कितना हुआ आपका 30,000। सो करेक्ट आंसर विल बी पार्ट ए, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट में कैलकुलेशन में इशू है। सो मनीष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ईशा कैपिटल अकाउंट, 30,000 डेबिट 30,000 क्रेडिट। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। Mahesh, Ramesh, and Naresh were the partners sharing profits and losses in 532. They decided to share future profits equally. On that date, there was a balance of 3,60,000 in the general reserve. General reserve में 3,60,000 का बैलेंस है और डेबिट बैलेंस है 1,80,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, एक पॉजिटिव बैलेंस है, एक नेगेटिव है, और बोला क्या है, पास सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द अबव ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में आता है कि कुछ प्रॉफिट्स के अमाउंट दे दिए, कुछ लॉसेस के अमाउंट दे दिए, आस्क अस टू कैलकुलेट कि आप एडजस्टिंग एंट्री करो। जब भी एडजस्टिंग एंट्री करनी है, पहले तो आप क्या कैलकुलेट करो, अपना गेनिंग और सैक्रिफाइस कैलकुलेट कर लो। 3 पार्टनर्स है, महेश, रमेश एंड नरेश। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइसिंग, 5/10, 3/10 एंड 2/10 माइनस करेंगे, कितना होना चाहिए जी, इक्वल है, तो 1/10, 1/10 एंड 1/10 कैलकुलेट कर लेते हैं। नरेश 1/10 पॉजिटिव सैक्रिफाइस, रमेश 2/10 पॉजिटिव सैक्रिफाइस, और यहाँ पे क्या हुआ, सॉरी नॉट, इट्स नॉट 1/10, इट्स इक्वल है ना, तो 1/3 होगा। सो दिस इज 1/3, 1/3, 1/3, ठीक है। आप एलसीएम लेके कैलकुलेशंस कर दो, तो 5/10 महेश आपका क्या हो गया, सैक्रिफाइस हो गया विद 5/10। रमेश -1/10, रमेश का गेन हुआ आपका 1/10 माइनस, और -4/10 नरेश का गेन हो गया। सो नरेश -4/10 और रमेश इज -1/10। चलिए अब आपका एंट्री करते हैं जो उसने हमें बोला है कैलकुलेट करने के लिए फॉर एडजस्टिंग रेशियो। एडजस्टिंग के लिए देखना पड़ेगा कि आपको गेनिंग करना है या सैक्रिफाइस करना है। क्यों देखना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे एक प्रॉफिट है और एक आपका लॉस है। चलिए, जनरल रिजर्व का अमाउंट कितना दिया है, 3,60,000, जो कि क्या होता है, आपका प्रॉफिट्स होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट है 1,80,000, जो कि नेगेटिव है। आपने नेट दोनों में कैलकुलेट किया तो कितना अमाउंट आया कैलकुलेट करके, इट्स कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव 1,80,000, पॉजिटिव 1,80,000, दैट मीन्स प्रॉफिट। तो जब भी प्रॉफिट्स होते हैं तो क्या एंट्री होती है, गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। तो हमारे एक्शन में हु इज द गेनिंग पार्टनर, रमेश और नरेश गेनिंग पार्टनर है, तो एंट्री क्या होगी, रमेश, चेक करेंगे फिक्स नहीं है, नहीं है, तो रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, द एंट्री इज नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू महेश कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट आ गया, हमारा नेट अमाउंट कितना है कैलकुलेट करके 1,80,000, तो 1,80,000 को ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गेनिंग पार्टनर में। नरेश इज 1/10, सॉरी रमेश इज 1/10, सो 1,80,000 इंटू 1/10 18,000, 1,80,000 इंटू 4/10 दैट इज 72,000, 1,80,000 into 5/10 which is 90,000 being the adjustment entry passed. Done? आप पहले रिवाइज कर लीजिए, पॉज लीजिए, फिर आगे कीजिए।
Okay, let's move to the next question, the question number 11. Anant, Gulab, and Khushbu were the partners, sharing profits and losses in the ratio 5:3:2. From 1st April, they decided to share their profits equally. For this purpose, goodwill was valued at 2,40,000. तो उन्होंने बोला है कि आपको future profits and losses equally जो है डिस्ट्रीब्यूट करने हैं. गुडविल 2,40,000 पे डिस्ट्रीब्यूट होगा. पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. ठीक है, अब तो क्लियर हो गया कि गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करना है. पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपका गेनिंग एंड सैक्रिफाइस. अनंत, गुलाब एंड द नेक्स्ट पार्टनर इज हुम, खुशबू. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपका सेम फॉर्मूला, ओल्ड माइनस न्यू गिव्स यू सैक्रिफाइसिंग रेशियो. ओल्ड कितना है, 5/10, 3/10 एंड 2/10. न्यू कैलकुलेट करते हैं, इक्वल करना है 1/3, 1/3, 1/3. सेम ही है जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में कैलकुलेट किया, रेशियो सेम है. So Gulab is sacrificing and same for the other partner, Khushbu. -4/10, -1/2. तो एंट्री क्या होना चाहिए आपका, गुडविल का एंट्री है ऑल द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, दैट इज गुलाब्स कैपिटल अकाउंट डेबिट. एंट्री कर लेते हैं, गुलाब्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो क्या कर रहा है, आपका सैक्रिफाइस कर रहा है. गुलाब्स कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड द खुशबूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनंत's कैपिटल अकाउंट. अनंत सैक्रिफाइस कर रहा है 5/10 के लिए, सो एंट्री होगा 2,40,000 इंटू 5/10. गुलाब का कितना होगा, 2,40,000 इंटू 1/10. खुशबू के लिए 2,40,000 इंटू 4/10. तो ये हो गया आपका 24,000, 96,000, 1,20,000. So this is the entry for the treatment of goodwill. Okay. Number 12. Hari, Kunal, and Uma are the partners sharing profits and losses in the ratio 5:3:2. And on the 1st April, they have decided to share the future profit and losses in 2:5:3. Change in ratio हो गया. Balance sheet showed a 75,000 in profit and loss account balance. देखिए यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट नहीं बताया. So what we assume कि कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है अकाउंट, एंड अ बैलेंस ऑफ 15,000 इन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड. और 15,000 का क्या, 1000 का इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू कितनी है, एंड स्टॉक हैविंग अ बुक वैल्यू दिस डेप्रिशिएटेड बाय 10%. हमें क्या करना है, नेसेसरी जर्नल एंट्रीज बनानी है टू प्रिपेयर फॉर द अकाउंट. क्या बनना चाहिए आपका, गुडविल ऑफ द फर्म है, गुडविल की भी जर्नल एंट्री करनी है, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट. वर्किंग नोट में वी विल कैलकुलेट द gaining and sacrificing ratio. Hari, Kunal, and Uma are the partners. Old minus new will be the formula, which is 5/10, 3/10, and 2/10. New ratio कितना है आपका, 2:5:3, which is 2/10, 5/10, and 3/10. हरी का कैलकुलेट करेंगे 3/10 पॉजिटिव, दैट मीन्स हरी इज व्हाट, ही इज सैक्रिफाइसिंग. उमा का करते हैं -2/10, गेन कर रहा है, एंड ही इज द थर्ड पार्टनर, उमा इज ऑल्सो गेनिंग. तो हरी, कुणाल एंड उमा, जिसमें से फर्स्ट पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है 3/10, कुणाल और उमा गेन कर रहे हैं आपके 2/10 एंड 1/10 रिस्पेक्ट. ओके, लेट्स डू द जर्नल एंट्री फॉर गुडविल नाउ. गुडविल का जर्नल एंट्री क्या होता है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. कौन कौन गेन कर रहा है, कुणाल और उमा गेन कर रहे हैं. सो एंट्री विल बी Kunal's capital account debit, Uma's capital account debit to Hari's capital account. अमाउंट कितना हो गया, 3,00,000 रुपीज. 3,00,000 इंटू हरी का गेन कितना है, सॉरी हरी जो सैक्रिफाइस कर रहा है कितना, 3/10. 3,00,000 इंटू 3/10 विच इज अमाउंटेड टू 90,000. कुणाल का गेन है 2/10, 3,00,000 इंटू 2/10 60,000. एंड उमा का गेन है 1/10 विच इज 3,00,000 इंटू 1/10 अमाउंटेड टू 30,000. तो ये हो गया आपका गुडविल का जर्नल एंट्री. और हमारा नरेशन क्या होगा, सिंपल, बीइंग द जर्नल एडजस्टिंग एंट्री पास. राइट, नॉर्मल जर्नल एंट्री कर देंगे. ओके,
लेट्स कम टू द सेकंड पार्ट, गुडविल डन हो गया। अब नाउ बैलेंस शीट क्या दिखा रहा है, 75,000 का प्रॉफिट एंड लॉस है और 15,000 का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट्स अ प्रॉफिट, तो पार्टनर्स में क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट अमाउंटेड टू 75,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के लिए हमें चेक करना पड़ेगा, बिकॉज इन्वेस्टमेंट का इंक्रीज डिक्रीज वैल्यू है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द पार्टनर टू एज हरीज कैपिटल, बिकॉज प्रॉफिट है सब पार्टनर्स में क्रेडिट हो जाएगा, टू कुणाल्स कैपिटल, टू उमास कैपिटल। ये हो गया आपका एंट्री। 75,000 डिवाइड कर दो इन देयर ओल्ड रेशियो 5/10, 37,500 into 3/10 and into 2/10. So कुणाल का कैलकुलेट किया 22,500, उमा का कैलकुलेट किया into 2/10, which is coming out to be 15,000, right? Now रेशियोज का काम तो हो गया, ये आप अपना वर्किंग नोट में बनाओगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट जर्नल एंट्री, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है आपका 15,000 का, जिसमें से इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू 50,000 का है और इन्वेस्टमेंट इवैल्यूएट हो रहा है कितने का, आपका 35। दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट में कितना डिक्रीज है, 15,000 का। इन्वेस्टमेंट कम हो गया 15,000। सो दैट मीन्स हमें पूरा का पूरा जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है वो किसके लिए यूज करना पड़ेगा, फॉर एडजस्टिंग द लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पे लॉस हो गया, दैट इज टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितना लॉस हुआ है, 15,000 का लॉस हुआ है, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी कितना अवेलेबल है, 15। सो पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आपका एडजस्ट हो गया टू द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो नो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हैज बीन लेफ्ट टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर्स। नरेशन हो जाएगा, बीइंग द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हैज बीन एडजस्टेड अगेंस्ट द लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट। नाउ क्या हुआ नेक्स्ट, स्टॉक हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 50,000 टू बी डिप्रिशिएटेड बाय 10%। स्टॉक की वैल्यू 10% से डिप्रिशिएट हो गई, तो मतलब स्टॉक कम हो गया, नुकसान हो रहा है। नुकसान होगा तो उसमें क्या होगा, स्टॉक रिवैल्यूएशन में डेबिट करेंगे, क्योंकि इट्स अ लॉस। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। कितना वैल्यू कम हुआ स्टॉक में, 10% से डिप्रिशिएट हो रहा है, बाय 10% है, तो 50,000 इंटू 10%, 5,000। अब जो रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ है ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर्स में। हरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, देन कुणाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, देन उमास कैपिटल अकाउंट। टू आपका जो लॉस हमने ऊपर अभी एडजस्ट लिखा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना लॉस है आपका, 5,000 टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो विच इज 5, 3 and 2 is 1,500 and 1,000. So these are the journal entry which is required, और कोई अकाउंट इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। ये क्वेश्चन अभी आपका 2019 में भी आया था, तो बी केयरफुल। अच्छा क्वेश्चन है जिसमें बहुत से जर्नल एंट्रीज आपके कवर अप हो रहे हैं। Okay, let's do the next question, the question number 30. What is the question? Satish and Taruna are the partners sharing profit and losses in 3-2. They decided to share equally. Now, on that date, the balance sheet showed a credit balance of 35,000 in workman compensation fund. 40,000 general reserve में है, 35,000 workman compensation में है। गुडविल में कितना अमाउंट है आपका, 50,000। और फर्म कह रहा है कि 40,000 क्लेम एक्सेप्ट कर लिया है वर्कमैन कॉम्पनसेशन के अगेंस्ट। 35,000 तो हमारा वर्कमैन कॉम्पनसेशन था, लेकिन क्लेम उससे बढ़ गया 5,000 से ऊपर। हमें क्या करना है, जर्नल एंट्रीज करना। चलिए सबसे पहले वर्कमैन कॉम्पनसेशन करते हैं। पुराना वाला वर्कमैन कॉम्पनसेशन तो आप डेबिट कर दोगे, बिकॉज लायबिलिटी है, पुराना वाला डेबिट करेंगे, दैट मीन्स आपने रिवर्स बैलेंस दे दिया, उसका बैलेंस खत्म हो गया, विच इज अमाउंटेड टू कितना है, 35,000 is the workman compensation reserve. Now, अब न्यू क्लेम क्रिएट करना है। न्यू क्लेम कितना क्रिएट करना है, कितना आया नया क्लेम, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। जो न्यू वर्कमैन कॉम्पनसेशन है वो कह रहा है 40,000 का है, यानी 35,000 तो जो ऑलरेडी पड़ा हुआ था उसी में से यूटिलाइज कर लेंगे। 5,000 जो एक्स्ट्रा हो गया उसका फंड हमें कहां से निकालना पड़ेगा, फ्रॉम द रिवैल्यूएशन अकाउंट। दैट मीन्स रिवैल्यूएशन अकाउंट में 5,000 रुपीज आपके और डेबिट हो जाएंगे, क्योंकि इतना फंड हमारे पास नहीं था, एंड वी हैव टू कैलकुलेट इट फ्रॉम रिवैल्यूएशन अकाउंट, बीइंग द वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम क्रिएटेड आउट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड एंड द रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलिए जी,
What do we next have? We have the 40,000 in general reserve. अब general reserve तो क्या होते हैं आपके? Accumulated profit until and unless question में ये नहीं लिखा कि आपको adjust करना है, हम क्या करेंगे? General reserve को distribute करेंगे among the partners in their profit sharing ratio. General reserve is 40,000. हमारे जो पुराने partners हैं, कौन कौन है पुराना partners? To Satish capital account to Taruna's कैपिटल अकाउंट। तो 40,000 को ओल्ड रेशियो विच इज हाउ मच 3:2, तो 3:2 में डिवाइड कर दो, अमाउंटेड टू रुपीज 24,000, 40,000 इंटू 3/5 एंड 40,000 इंटू 2/5, 16,000 बीइंग द जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। देखिए वर्कमैन कॉम्पनसेशन भी हो गया, जनरल रिजर्व भी हो गया। नाउ वी हैव अ गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल ऑफ द फर्म के लिए आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? आपका रेशियो। तो पार्टनर्स कौन कौन है? सतीश और तरुणा। कैसे निकालेंगे? ओल्ड रेशियो माइनस द न्यू रेशियो विच इज इक्वल, और गेन और सैक्रिफाइस आप कैलकुलेट कर लो। 4/15 will make change. This is not 1/3 because दो ही पार्टनर हैं, तो 1/2 1/2 कैलकुलेट कर लेते हैं। 6 - 5 1/10। ये क्या कर रहा है? सतीश सैक्रिफाइस कर रहा है, अदर पार्टनर मस्ट बी गेनिंग। यस। तरुण क्या कर रहा है? -1/10। मैंने बोला था आपका सैक्रिफाइस और गेन इक्वल होना चाहिए, कुछ नहीं आया तो दैट मीन्स इक्वल नहीं है, तो आपका क्वेश्चन कहीं गलत है। सतीश सैक्रिफाइस कर रहा है, तरुण गेन कर रहा है। तो गुडविल के एंट्री में क्या होता है? गेनिंग पार्टनर। सो गेनिंग पार्टनर कौन है? तरुण। सो एंट्री विल बी तरुणास, नॉट तरुण, तरुणास। नेम में मिस्टेक नहीं होना चाहिए वरना जनरल एंट्रीज आपका रॉन्ग हो जाएगा। इट्स तरुणास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किसको डिवाइड कर रहा है? टू सतीश कैपिटल अकाउंट अमाउंटेड टू 1/10। 3,50,000 का गुडविल है इंटू 1/10, बोथ पार्टनर्स 5,000 बीइंग द एडजस्टिंग एंट्री पास्ट। आई होप I'm able to explain this question. So next, move to the next question. That is question number 14. Okay, question number 14 read करते हैं. LM are partners sharing profits and losses in the ratio 2:3:5 and they have decided to share the losses in 1:2:2. On this date, balance sheet showed a credit balance of 1,17,000 in general reserve. कि जनरल रिजर्व को क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है, जब तक बोला नहीं है कि नहीं करना। डेबिट बैलेंस है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में -35। गुडविल वैल्यूएट कर रहा है आपका 5 लाख पे। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आपका रिजल्ट कर रहा है गेन 30,000। नाउ पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। ठीक है, तो नॉर्मल जर्नल एंट्रीज करते हैं। विल स्टार्ट फ्रॉम द जनरल रिजर्व, क्योंकि जनरल रिजर्व का एंट्री पहले है। जनरल रिजर्व बोला नहीं है कि फर्म डज नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, नहीं बोला है तो सिंपली क्या करेंगे? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एल्स कैपिटल अकाउंट टू एम्स कैपिटल अकाउंट टू एन्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जनरल रिजर्व में कितना अमाउंट है आपका? 1,17,000। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन 2:3:5, तो कितना अमाउंट होगा? Its capital account 1,17,000 into 2/10. The amount is coming to be 23,400. M capital calculate करेंगे into 3/10, तो which is 35,100. And N का capital calculate करेंगे तो आपका 58,500. ओके जी, नेक्स्ट जर्नल एंट्री करते हैं। नेक्स्ट जर्नल एंट्री किसकी करनी है हमें? टू द डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूट हो गया। डिस्ट्रीब्यूट होगा तो पार्टनर्स क्या हो जाएंगे आपके? डेबिट, क्योंकि पार्टनर्स को क्या हो रहा है? यहाँ पे नुकसान हो रहा है। पार्टनर्स को नुकसान होगा तो पार्टनर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड। सो आपका एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
बिकॉज इट्स अ डेबिट बैलेंस। बस डेबिट क्रेडिट ध्यान में देना, क्योंकि डेबिट को बच्चे ध्यान से देते नहीं और एग्जाम में वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अमाउंट इज हाउ मच, 35,000 इंटू 2/10, तो ये हो जाएगा आपका 7,000, then 3/10, 10,500, and 5/10, that means 17,500। ठीक है। नरेशन क्या होगा, बीइंग द प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। अब नेक्स्ट एंट्री किसका करना है, प्रॉफिट्स हो गए, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करना है, और गुडविल के बाद क्या करना है हमें, रीवैल्यूएशन, द रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी रिजल्टेड इनटू अ गेन ऑफ 30,000। तो गेन दैट मींस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपका गेन जो है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। जस्ट इन प्लेस ऑफ जनरल रिजर्व आप किसे डेबिट कर दोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितने का लॉस है आपका, 30, सॉरी गेन है नॉट लॉस, 30,000 इंटू 2/10 विच इज 6,000 इंटू 3/10 कमिंग आउट टू बी 9,000 इंटू 5/10 दैट मीन्स 15,000। सो ये हो गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस। अब नेक्स्ट जर्नल एंट्री आपको किसकी करनी है, गुडविल की करनी है, लेकिन गुडविल के लिए तो आपको फिर से क्या निकालना पड़ेगा आपका, द वर्किंग नोट। वर्किंग नोट, एल एम एन एन आर द पार्टनर्स, दोनों का तीनों का आपका ओल्ड रेशियो कितना है, 2/10, 3/10 एंड 5/10। माइनस करेंगे आपका न्यू रेशियो 1/5, 2/5 एंड 1 to 2 है, तो 2/5 हो गया। कैलकुलेट करते हैं, 2 - 2 दैट मीन्स ये तो जीरो, ना लॉस कर रहा है ना गेन कर रहा है। 10, 3 माइनस 1/10 दैट मीन्स m कर रहा है आपका -1/10 गेन कर रहा है, और ये आपका 1/10 सैक्रिफाइस कर रहा है। सो हु इज द गेनिंग पार्टनर, m। गुडविल के लिए आपका गेनिंग पार्टनर डेबिट होगा, m's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एंस कैपिटल अकाउंट। गुडविल का अमाउंट कितना है आपका, 5 लाख। सो 5 लाख इंटू जितना भी उनका गेनिंग अमाउंट है विच इज 1/10, 5 लाख इंटू 1/10 विच इज 50,000। डन, दीज आर ऑल द एंट्रीज। चेक कर लेते हैं, जनरल रिजर्व दिया था हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस हो गया, गुडविल ऑफ द फर्म का एंट्री हो गया, एंड रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज भी हो गया। ठीक है, आई होप। अब आप चेक कीजिए जितने भी ये लेंदी वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं सब में कितने कितने एंट्रीज आ रही हैं, 4 मार्क्स की। तो 4 जर्नल एंट्रीज है, इधर 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा या 6 मार्क का, 1.5 ईच। तो इजी क्वेश्चन है एंड इट्स वेरी इजी टू गेट द मार्क्स इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द क्वेश्चन नंबर 6, sorry, question number 15। चलिए जी रीड करते हैं। PQR were the partners sharing profits and losses in the ratio 1:2. On 31st March, their balance sheet showed a credit balance of 19. क्रेडिट बैलेंस है 9,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड 64,000 का शो कर रहे हैं, एंड दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 2:1। Now, for this purpose, it was agreed that goodwill कितना वैल्यू होगा, 4 लाख, claim on workman compensation होगा 30,000 का। Simply you have to do the journal entries on the reconstitution of the firm। तो चलिए सबसे पहले वर्किंग नोट बनाते हैं और रेशो निकाल लेते हैं, बिकॉज गुडविल तो कैलकुलेट करना ही है। PQR the partners and what we have to calculate the gain or sacrifice. Old ratio is 1:2, 2:3:4, so 1/4, 1/4 and 2/4। New ratio कितना है आपका, 2:1, that means 2/5, 2/5 and 1/5। कैलकुलेट करते हैं। अभी तो देखिए दोनों पार्टनर क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, 6/20 दोनों का आ रहा, तो इस पार्टनर का सैक्रिफाइस हमेशा 6/20 तो होना ही चाहिए। ये देखो 6/20। सो जो आर है वो सैक्रिफाइस कर रहा है 6/20 का, और फर्स्ट दो पार्टनर इक्वली क्या कर रहे हैं, आपका गेन कर रहे हैं। सो फर्स्ट जर्नल एंट्री हम गुडविल की ही कर लेते हैं। सो गुडविल का जर्नल एंट्री क्या होना चाहिए, आपके फर्स्ट 2 पार्टनर्स गेन कर रहे हैं तो गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट, तो पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट
R's capital account debit, and last partner is सॉरी क्यू आपका गेन कर रहा है और आर तो क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, तो आर्स कैपिटल अकाउंट। सो क्या अमाउंट हो जाना चाहिए आपका, गुडविल है 4 लाख का, 4 लाख इंटू 6/20, सो इट्स कमिंग आउट टू बी 2,40,000, एंड फॉर द अदर पार्टनर्स 3/20 है आपका, और इक्वली कह सकते हैं तो 2,40,000 को भी डिवाइड कर सकते हो, 1,20,000 एंड 1,20,000। ये हो गया आपका बीइंग द एडजस्टिंग एंट्री फॉर गुडविल पास्ट, राइट। गुडविल हो गया। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड है। लायबिलिटी कितने का है वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड पे, 30,000 का वर्कमैन कॉम्पनसेशन का लायबिलिटी है, और ऊपर आपके पास वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड दिया है 64, मतलब कम की ही लायबिलिटी है, आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड अकाउंट डेबिट विच इज अमाउंटेड टू 64,000 टू क्लेम कितना हुआ, टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट, पूरा लिखना है, हाफ में नहीं लिखना, अदरवाइज मार्क्स चाहेंगे, WCC नहीं लिखना है वहां पे। कितना क्लेम है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम इज 30,000 टू पीस कैपिटल, क्योंकि जो रिमेनिंग है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, आपके पार्टनर्स में, तो टू आर्स कैपिटल अकाउंट, तो टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। 34,000, 64 में से 30,000 का तो क्लेम एडजस्ट हो गया, अब 34,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे इन द ओल्ड रेशियो विच इज 34,000 इंटू 1/4, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो कितना हुआ आपका 8,500, 8,500 एंड this will be 17,000 is the workman compensation reserve. Now आपके पास और क्या था, बैलेंस शीट शोड 9,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस शीट। पार्टनर्स क्या होंगे, क्रेडिट होंगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, क्रेडिट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पी टू क्यू टू आर कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना बैलेंस है आपका, 9,000 का, 9,000 डिवाइडेड बाय करेंगे आपका 4, तो कितना अमाउंट हुआ, 9,000 डिवाइडेड बाय 4, इट इज कमिंग आउट टू बी 2250। क्यू में भी सेम, क्योंकि ये भी सेम है आपका 2250, एंड इंटू 2 करेंगे तो कितना हो गया आपका आर विच इज 4,500। सो ऑल द एंट्रीज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व एंड योर गुडविल, ये तीनों एंट्रीज आपने पास कर दिया विद कैलकुलेशन ऑफ द गेनिंग एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रेशियोज कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज अगर आपने वर्किंग नोट नहीं बनाया यू विल लूज द मार्क्स। ओके, नेक्स्ट करते हैं। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। Aman, Bobby, and Chandani were the partners sharing profits and losses in 541. On 1st April, they decided to share future profits equally. Or the revaluation and assessment of liabilities result into losses of 5,000. 5,000 के losses हो गए. Goodwill of the firm on its reconstitution valued at 1,20,000. देख तो revaluation का आपके पास loss है. Goodwill of the firm है जो 1,20,000 का क्या कर रहा है, reconstitution पे evaluate कर रहा है. Firm के पास 20,000 का general reserve है. आपको अपनी workings clearly करके general reserve जर्नल एंट्रीज करनी है, रिकॉन्स्ट। चलिए क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने से पहले आप खुद से जर्नल एंट्री कर लो और फिर चेक करो। चलिए सबसे पहले तो क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन में लॉस हो रहा है तो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो क्या होगा, अमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कहीं पे भी आपको फिक्स नहीं बोला है, बॉम्बेज कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड चांदनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, राइट। टू क्या डिस्ट्रीब्यूट होंगे आपके रिवैल्यूएशन डेबिट पार्टनर्स, इसलिए किए बिकॉज क्या है, रिवैल्यूएशन का यहाँ पे लॉस है। अभी तक जितने क्वेश्चंस किए वहां पे सब प्रॉफिट था, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट द लॉस इज अमाउंटेड टू 5,000। ओल्ड रेशियो कितना है आपका 541, तो 5/10 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, सो दिस इज गोना बी 2,500, 2,000 एंड 500, राइट। अब गुडविल के लिए आप रेशियो कैलकुलेट करोगे, और 20,000 है फर्म के पास इन द जनरल रिजर्व, ठीक है। तो जनरल रिजर्व तो आप डिस्ट्रीब्यूट करिए, तो जनरल रिजर्व इज अ प्रॉफिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट
टू आपके पार्टनर्स को क्रेडिट कर देते हैं, क्योंकि पार्टनर्स को क्या होने वाला है, यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है। टू अमन्स कैपिटल अकाउंट, टू चांदनीज कैपिटल, टू गोबिस कैपिटल। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका टू बॉबिस कैपिटल, टू चांदनीज कैपिटल। अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। जनरल रिजर्व का आपका अमाउंट कितना है? जनरल रिजर्व हैज अ अमाउंट ऑफ 20,000 इन द जनरल रिजर्व। 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द ओल्ड रेशियो विच इज 5:1, तो 5/10 ये हुआ आपका 10,000। 10 डिवाइड करेंगे तो 2,000 into 4, दिस विल बी 8,000। एंड द लास्ट वन इज चांदनीज कैपिटल अकाउंट, कितना प्रॉफिट क्रेडिट हो गया? 2,000 रुपीज। नाउ द लास्ट जर्नल एंट्री विच इज रिलेटेड टू गुडविल, लेकिन गुडविल की जर्नल एंट्री करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? उसके पार्टनर्स का सैक्रिफाइस कैलकुलेट करना पड़ेगा। अमन, बॉबी एंड चांदनी। फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड रेशियो क्या है आपका? 5/10, 4/10, 1/10। और गेन कितना कर रहा है आपका? 1/3, सॉरी नॉट 10, क्योंकि इक्वल है आपका। सो 1/3, 1/3 एंड 1/3। सो 5/10 अमन का क्या हुआ? गेन। वो भी चेक कर लेते हैं। ये भी आपका 2/10 का गेन दिखा रहा है। और 7/10 आपका चांदनी का नेगेटिव हो गया, विच इज अ गेन। सो चांदनी गेन कर रही है गुडविल में। गुडविल का जर्नल एंट्री क्या? गेनिंग। तो विच इज चांदनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, और कौन गेन कर रहा है? टू अमन्स कैपिटल अकाउंट, टू बॉबिस कैपिटल अकाउंट। डन। अब चांदनी कितना गेन कर रही है? 7/10। गुडविल का वैल्यू कितना है? गुडविल हैज अ रिकॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू ऑन दैट डेट्स 1,20,000। तो 1,20,000 इंटू 7/10 अमाउंटेड टू 84,000। अमन का गेन कैलकुलेट करेंगे विच इज अमाउंटेड टू 5/10, 60,000। और नेक्स्ट बॉबी का गेन है, आप बॉबी का सैक्रिफाइस है 2/10 विच इज 24,000। सॉरी, बॉबी में आएगा। So we have completed the change in profit sharing ratio, all the important question. If you like this video, please share and subscribe and comment for all the videos that you want in the future. Thank you so much.